completed MBA from University Australia. Her stories were shortlisted for the Digital Book of the Year Award 2014. She participated in Writer in Residence at the University of Iowa's International Writing Program. She was the Charles Wallace at the University of Stirling, Scotland. She debuted in a character role in the Tamil feature awarded Open Road Review Short Story Prize in 2000. After studying economics at Mumbai's Mithilabai College, Rahul Sharma made his debut performing with his father, a renowned Santur player, Pandit Shivkumar Sharma. World music with various collaborations, including Namaste India. Sri Rahul Sharma has more than 60 albums to his credit. He has collaborated with international musicians. He is the recipient of Best Academy Award and MTV Award. It is with utmost respect that Sanskrit University confers the contributed immensely to the world of music. She is formally trained musician with a Bachelor's of Music in Film Scoring from Berklee College of Music, Boston, and from Dubspot, New York. She has been collaborating with artists, neuroscientists, and healing art practitioners and organizing programs world over. She has been exhibiting at various platforms such as SAGES and Scientist Symposium, World Exchange, and the International Yoga Festival. It is with utmost respect that Sanskrit University confers the degree of Doctor of Philosophy on Madam Satya Hinduja ji. Thank you, everyone, and thank you for honoring me this prestigious honorary doctorate. On behalf of the sculptors community, I accept this with grace and happiness. As a sculptor, we have a chance to live even after the death, at the same time with the most respect from the society. And our sculptors contributed to the nation immensely for centuries. And thank to Sanskrit University for giving this award, and thank you everyone. Madam Krishna Mehta ji, Sri Arun Yogiraj ji, Madam Roshan Kotkar ji, who are going to receive honorary doctorate in person, and in an industrialist who has also been the source of inspiration for all of us. And I also welcome Sri Ajit and Dr. Prakash Chabra ji, Anil Mathur ji, Dr. Meenakshi Seshadri Madam. I am happy to welcome. She, known for excellence in life for students, has become a synonym for providing global education and Indian ethos. Sanskriti is committed to elevating itself to the status of top 100 students who hail from 22 different states and 25 different countries. Sanskriti University has received numerous recognitions and awards and accolades from the reputed organization. संस्कृति विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज आप सभी के लिए भी एक बड़ा दिन और यादगार क्षणों से भरा हुआ दिन। इस क्षण के लिए आप कई वर्षों से परिश्रम कर रहे थे। आपके गुरुजनों, माता पिता और शुभचिंतकों को भी आज आप सब पर बहुत गर्व हो रहा है। मैं आप सभी स्नातकों को इस उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तब भी मैं इसका जिक्र करता था और मैं कहता था कि देखिए, यदि शिक्षा विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से आप निकल करके कुछ भी बनिए, लेकिन अच्छे इंसान जरूर। अच्छा इंसान इसलिए, यदि आप अच्छे इंसान हैं तो आपको जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, यदि आप साधु वेश में होंगे तो अच्छे साधु, टीचर होंगे तो अच्छे टीचर होंगे, यदि आपको पति बनने का सौभाग्य मिलता है तो आप अच्छे पति होंगे, पत्नी बनने का सौभाग्य मिलता है तो अच्छी पत्नी होगी, और जो भी जिम्मेदारी आपको मिलेगी, यू विल प्रूव टू बी द बेस्ट। इसलिए अच्छा इंसान कभी कभी लोग कहते हैं ना, सामाजिक क्षेत्र में डिवैल्यूएशन, डिग्रेडेशन मूल्यों का, अवर वैल्यूज आर बीइंग डिग्रेडेड। वो क्यों है? ऐसा नहीं है कि
यदि आप टीचर्स जाएं, सभी यूनिवर्सिटीज में जाएं, शिक्षा विश्वविद्यालयों में जाएं, तो आपको सभी जगह डिग्रेडेशन ऐसा भी नहीं है। लेकिन आप डॉक्टर्स मेडिकल फैकल्टी में जाएंगे वहाँ पे मिलेगा, टीचर्स में जाएंगे वहाँ भी मिलेगा, वकील होंगे वहाँ भी मिलेगा, नेताओं राजनीति में होगा वहाँ भी, लेकिन वहाँ पर भी बहुत अच्छी केवल और केवल जरूरत इस बात की है ढूंढने। लेकिन प्यारे छात्र छात्राओं, इस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट होकर आपको एक मजबूत आधार मिला है। यहाँ से प्राप्त शिक्षा आपको आत्मविश्वास देगी और आपको अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। हालांकि आपकी शिक्षा यही समाप्त नहीं होती। शिक्षा एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। ये हमेशा से सच था, लेकिन ये आज के जमाने में ये पहले से कहीं ज्यादा सच और प्रासंगिक। 21वीं सदी में सफल होने के लिए सिर्फ एक बार सीखना ही पर्याप्त नहीं। 21वीं सदी में सफल होने के लिए आपको अपने कौशल को लगातार निखारना पड़ेगा, निरंतर नया सीखना पड़ेगा। आउटडेटेड तरीकों को छोड़कर अपने ज्ञान को, अपने कौशल को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप जल्द ही अपने जीवन के एक नए चरण में प्रवेश करने वाले हैं। यू आर गोइंग टू एंटर अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। आप में से कुछ लोग अब पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े, कुछ लोग अपना व्यवसाय शुरू करें और कुछ आगे और उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहें। आप सभी अपने अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। मैं कामना करता हूं आप अपने चुने हुए कार्य में खूब सफलता हासिल करें। लेकिन यह भी सच है कि हम चाहे कोई भी रास्ता अपनाएं, हमें हर यात्रा में कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना है। चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, कठिन परिस्थितियों में हौसला कैसे रखते हैं, यही हमारी सफलताओं का मापदंड होगा। प्रयास और मेहनत करना व्यक्ति का कर्तव्य है। सफलता या असफलता ईश्वर के अधीन है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करना आपका अधिकार है, लेकिन कभी भी परिणामों के प्रति आसक्त न हो। जब भी आपको असफलता या कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो हिम्मत मत, इसे विनम्रता से स्वीकार करें, एक कदम पीछे हटें और सोचें कि और क्या अलग किया जा सकता है और कौन से अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं कि जिससे जो हम चाहते हैं वो हमें मिल सके। एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहें। सफलता आपको जरूर मिले। आप जो भी करें हमेशा उसमें हार न मानने की भावना रखें और फिर फाइनली स्काई इज द लिमिट पर। कभी कभी मैं सोचता हूं कि अपनी जीवन यात्रा के कुछ मेरे जीवन यात्रा के बारे में बताया गया। वैसे मैं सरप्राइज तब हुआ जब वाइस चांसलर साहब अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करने जा रहे थे, तो मुझे लगा कि इनकी एनुअल रिपोर्ट में मैं कहाँ से आ गया, तो फिर उन्होंने शुरुआत मेरे से की थी। कभी कभी मैं सोचता हूँ अपनी छोटे से जीवन यात्रा, तो ये पाता हूँ कि एक लंबी और कठिन परंतु बहुत ही संतोषजनक यात्रा है। मेरा जन्म एक बहुत साधारण पृष्ठभूमि के परिवार में, गांव में हुआ। सौभाग्य हमारे यहाँ दीक्षांत समारोह था, 5वां दीक्षांत समारोह, जिसमें आदरणीय फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज द चीफ गेस्ट, और उन्होंने आज एक यहाँ पेड़ लगाया और हम सबको प्रोत्साहित किया हम पेड़ लगाएं। उसके साथ साथ उन्होंने बच्चों को डिग्रीज दी, ऑनरी डिग्रीज दी, सबको आशीर्वाद दिया। साथ साथ यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण करा, और जो कि हम सब के लिए, वो स्वामी विवेकानंद जी यूथ के लिए एक आइकन है और कोविंद जी अपने आप में एक आइकन है। तो बहुत खुशी का दिन है, हर्षोल्लास का दिन है। आज वो यहाँ आए, सबको आशीर्वाद दिया और बच्चे यहाँ से डिग्रीज लेके जा रहे हैं। उन सभी को मेरी तरफ से बधाई है, शुभकामनाएं।
आज यहाँ पर हमारे 6 गेस्ट ऑफ ऑनर हैं जिनको मानव उपाधि दी गई है। उनमें श्री सत्या हिंदुजा जी हैं जिन्होंने म्यूजिक में काम किया, इंडियन म्यूजिक के ऊपर। श्री राहुल शर्मा जी जो इंडियन संतूर मैस्ट्रो हैं, वो भी म्यूजिक में बहुत काम कर रहे हैं। उदयराज गणेश जी हैं, वो एक बहुत बड़े पेंटर हैं और अपनी पेंटिंग से अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उसी के साथ रोशल पोटकर हैं जो बहुत बड़ी राइटर हैं, उनको पूरे यूरोप में सराहा गया है, इंडिया में सराहा गया है। उसके साथ साथ कृष्णा मेहता जी हैं, उनको भी पूरे देश में सराहा गया बिकॉज ऑफ अवर फैशन डिजाइनिंग वर्क्स। इसी तरह से हमारे जितने भी आज यहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। उन सब ने यहाँ आया, बच्चों को आशीर्वाद दिया और अपने हाथों डिग्री सम्मानित करी। ये बहुत खुशी का दिन है हम सभी के लिए।